Hello guys, good morning to all of you my dear guys. My dear guys, in the last episode, I made you understand each and everything concerning to UPSC prelims examinations questions on the basis of 5-year plans. Several plans I made you understand, several plans have been discussed by me, and today I will try my best to give you the concrete concept and knowledge as per the 5-year plan which has been remained even today. जो भी अभी तक बच गया है, I will try my best to make you understand each and everything. Okay. So according to this episode is also completely based on the basis of 5-year plans. In this episode, what I have discussed, in the last episode, I think I discussed till 7th 5-year plans. Okay. 7th 5-year plans, the durations of that was 1985 to 1990. Okay. यानी जो हमारा 7th 5-year प्लान था वो 1985 से 89 था. Is it okay? And after 7th 5-year plans, what happened in our country? Actually, there was a disarrangement. Yeah, we can say disorders of the political system, political crisis, political instability in our country. That's why finally 8 5-year plans did not introduce in that period. Okay, this was the main heading. That's why we can say till 90 to 92 means for 2 years only. Okay, for 2 years in our country, annual plan was also launched by our government to make the stability of our economy after studying, after we can say considering different challenges. During that we can say before 8 5-year plans, since 1990 to 1992, the 8 plan could not take off due to the fast changing political situations in our country at the center we can say. That's why therefore we can say from 1990 to 1992 annual plan were formulated. 2 annual plan were formulated since 1991 and 1991 to 1992. Is it okay? And after the annual plan, finally in 1992 to 1997, there was 8 5-year plan introduced in our country. Is it okay? What was the objectives and what was the motto behind 8 5-year plans and government launched in our country? You know very well. I'm talking about 1992 to 1997. You meant to say this was the regime, this was the period of LPG liberalization, privatization and globalization. It meant to say this was the period of our country to make welfare economy for all of the people. Is it okay? And that period our government was also we can say energetic itself to give the complete and concrete structure and formations of our economy concerning to all of the making the collaborations of all of the sectors, not only for economy but also social, political, different stability were made or complete in the forms. Is it okay? So what were the objectives of 8 5-year plan? My dear guys, try to understand each and everything. One point must be remembered first. The process of the physical reforms and economic reforms. Process of physical reforms and economic reforms initiated by Narasimha Rao. Is it okay? Because in 1991, Narasimha Rao made its government. Okay. And he was also Prime Minister of our country since 1991. And that period, he brought Mr. Manmohan Singh, because you know very well that he is a scholar and the famous economist in all over the world. In the leadership of Manmohan Singh, yeah, we can say the doing activities which were completely sponsored to the Manmohan Singh, and the advocating of that plan was sponsored by Narasimha Rao government. Is it okay? The initiated by Narasimha Rao government to prevent another major economic crisis. Because in that period, Indian economy was very in depressed, decline of our, yeah, we can say devalued of our monetary policies also. Our economy did not carry more than 15 days in that period. That was the world's, I'm talking about the Indian economy was in the crisis. And Indian economy was also facing a big crisis
in the we can say upcoming days. Okay, and in that period the objective to make the stability with the increase the average of the industrial growth I'm talking. Okay, the industrial growth rate to 7.5%, यानी इसमें सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को 7.5% प्राप्त करने के लिए इच्छा जाहिर की थी. ओके, एंड टू प्रोवाइड ए न्यू वी कैन से डायमेनिज्म and the new dynamism of the economy and improve the quality of life of the common people and common man, because government was also, we can say, considered to make the welfareal economy by which all people can assimilate with that economy and they can also get the profitables and enshrine their life and livelihood also. That's why we can say 850 plan is also called Rao Manmohan models या Rao Manmohan Singh models, because the interpretations, the collaborations of Narasimha Rao and Manmohan Singh both introduced this type of plan, having the rules which has made since independence of our country made liberal. Okay, that's due to that foreign exchange and FDI also came in our country. Okay, and if I'm talking about the globalizations, in the field of globalizations, the quality of that products which has been introduced manufactured in our country, those are also demanded in the world to making the global, to making the name of the globalized. This was also interpretations. Okay, and in this 850 plan, this was the period that first indicative plan was introduced. First indicative plan, what do you mean by indicative? Indicative means to say to demonstrate each and every sectors which is under the priority sector, यानी वैसे सेक्टरों को इंडिकेट कर लेना, निर्देशित कर लेना जो हमारे इकोनॉमी के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उससे ही हम हो सकता है कि उस पर यदि कार्य कर ली जाए तो हो सकता है कि भिन्न भिन्न जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, दो चैलेंजेस कैन बी सॉल्व. ठीक है, तो यही हमारे फर्स्ट टाइम था जिसके दौरान हमारे यहाँ इंडिकेटिव प्लान was also introduced. Is it okay? What was the result? Result was very, very important. Okay, that higher economic growth rate of this 5-year plan, 8-5-year plan was 6.8%, were achieved as the original targeted 5.6%. It means to say, if I'm talking about the targeted of growth rate during 8-5-year plans was 5.6%, यानी टारगेट हमारा 5.6% था, वेयर अचीव 6.8%. इट मीन टू 6.8 1.5 यानी 1.6.8 और 5.6 यानी सॉरी 2 है ना, यानी 1.2% लगभग इसका प्रॉफिट हुई. इज इट ओके, यानी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया. एंड ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव रेस्पॉन्स. ओके, एंड सिग्निफिकेंस रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, जो भी एक राजस्व घाटा जो चल रही थी उसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं सुधार हुआ. ठीक है, और राजस्व में जब सुधार हो जाती है, राजस्व घाटा जब हमारा पॉजिटिव की ओर आती है, तो वी कैन सी दैट द सेविंग्स ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड द स्टोरिंग ऑफ आवर गवर्नमेंट, लाइक टैक्सेशन, इफ आई एम टॉकिंग revenues we are talking, okay, from different sources, government is also collecting. If government has collections, it can be used and introduced to make the welfare, to make different types of we can say objects, to develop infrastructures and everything which is very, very important for the stability of the economy and social political, those can be also developed. Is it okay? If we are talking about the agriculture, what was the output for the agriculture? The agriculture growth and industrial growth also increased during 8-5-year plan. Is it okay? And in that period, unshackled private sector and foreign investment, we can say, control was prime reasons for high growth, because government was completely determined to control and introduce about these types of interpretations and sectors by which our economy
can be leverages. Is it okay? And overall, if I'm talking socio-economic development indicators was low, okay, and the growth became jobless and fruitless. So this was a negative response concerning to the output of the 8th 5-year plan. Is it okay? If you am talking about the 9th 5-year plan, so the 9th 5-year plan was introduced in our country since 1997 to 2002 sorry, यानी 1997 से 2002 तक हमारे यहाँ 9th 5-year प्लान चला. इज इट ओके? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट टू मेक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. यानी 9th 5-year प्लान जो थी, इसमें सरकार ने ग्रोथ तो करेंगे लेकिन समाज तथा एक इक्वालिटी, बराबरी के साथ, किसी के साथ किसी भी प्रकार इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. दिस फैक्टर्स इन पैरामीटर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड concerning to the we can say determinations of the government, okay, and emphasis on 7 basic minimum services, we can say BMS, basic minimum services, okay, which included safe drinking water, because we know this is our fundamental rights, this is our inborn rights which has been also given to us, okay. So including drinking water, universalizations of the primary education, we can say streamlining, we can say PDS, public distribution systems, among others. Those are the main factors, those are the main schemes, those are the main priority sectors which were given priority by the government. Is it okay? And pursue the policy of fiscal consolidations. Fiscal consolidation by which government can restore, government can also boost its revenue, okay. This is also interpretations of the good remarks. Is it okay? I'm talking about the decentralizations. So during the decentralization of planning with greater reliance on states, it means to say in that period an effort was launched between the government and central government and the state government, that a collaborations must be made. On that collaboration, center and state both do the important work and both must achieve their target. Is it okay? So this was also interpretation. That's why we can say ensuring food and nutrition security to all was in the positive response got. And the final, if I'm talking, so there was the main priority and there was the main important factors which was launched during the 9th 5-year plans was to make empowerment to women, ST, scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. So this was the main content during 9th 5-year plans, that this must be in focused and must be in the sense of the government consideration. Is it okay? यानी महिलाओं को एम्पावर्ड कर देना, ST, SC तथा OBC को एम्पावर्ड कर देना, उनको सशक्त करना, इस सरकार के कह सकते हैं जो उनकी एजेंडा थी. दिस वाज कंप्लीटली कंसिडर्ड. ओके, व्हाट वाज द रिजल्ट? व्हिच टाइप्स ऑफ रिजल्ट हैज बीन ओरिएंटेड फ्रॉम दिस प्लान? तो रिजल्ट वाज दैट, इफ आई एम टॉकिंग, नंबर 1 रिजल्ट इज दैट, ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन and other factors led to the revision, okay, of targeted growth rate from 7% to 6.5%, which too was not achieved. Is it okay? यानी 7% इसमें टारगेट की गई थी, 6.5% हासिल किया गया, जो हम अपने एक टारगेट जो हमारा था वहां से हम थोड़ा पीछे हो गए, ठीक है. एंड द इकोनॉमी ग्रू एट 5.4% ओनली. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सरप्लस ऑफ आवर इकोनॉमी, it was not growth as per the expectations which was expected in our we can say so motto of the program which has been made our government. Is it okay? If you are talking about the agriculture, because we know very well India is also agriculture and allied sectors concerned economy since when independence till now. If I am talking, the greatest populations of our country depend on agriculture, bank on agriculture. That's why we have to discuss about that. If I'm talking about the agriculture grew, the agriculture grew by 2.1% only, okay, as against the target of 4.2%.
पर एनम, क्योंकि इसमें टारगेट किया गया था कि 4.2% एनम प्रत्येक साल हमारा एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, ग्रो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमने 2.1% यानी हाफ, 21 दूनी 42, 4.2 ओवर 2.1 यानी ठीक उसका हम हाफ इसमें पाया गया। If we are talking about the 10th 5-year plan, what was the period? The 10th 5-year plan was launched in our country from 2002 to 2007. 2002 से लेकर के 2007 तक जो हमारे यहाँ 5-year plan चला वो 10वां पंचवर्षीय योजना थी। Okay. And the objectives of this plan was the 10th plan, if I'm talking, the 10th plan aimed at achieving 8.1% of GDP. यानी इसमें जो टारगेट किया गया था वह हमारा जीडीपी का 8.1% प्राप्त करने की बात हुई थी, ग्रोथ रेट। ठीक है, एज्यूमिंग दैट आईसीओआर मीन व्हाट डू मीन? आईसीओआर मीन टू से इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ओके, दैट इफ आई एम टॉकिंग द विल डिक्लाइन फ्रॉम 4.53% टू 3.58%, यानी 3.58% से 4.53% पर गिर गया। इज इट ओके? तो दिस वॉज नेगेटिव रिजल्ट वी कैन से। And it also aimed at increasing the domestic savings rate. जो हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग रेट होता है इसको भी इंक्रीज करने के लिए इसमें आप कह सकते हैं टारगेट किया गया था। ठीक है, अचीव करने की बात की गई थी। फ्रॉम 23.52% टू 29.4, यानी 23.52% से लेकर के वो बढ़ाने की बात हो रहा था कि 29.4% तक हम ले जाएंगे। कौन? हमारा डोमेस्टिक सेविंग। ठीक है, यानी ईच एंड एवरी पीपल कैन कंज्यूम, ईच एंड एवरी पीपल कैन सेव फॉर लिवलीहुड एंड फॉर फ्यूचर। ओके, लेकिन क्या हुआ? जीडीपी का वो बात कर रहे थे कि जीडीपी का 23.52% से हम बढ़ा करके 29.4% हम सेविंग करेंगे। इज इट ओके? लेकिन क्या हुआ? एंड ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन टू 32.2% फ्रॉम 24.4% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का 24.4% से जो उनका फॉर्मेशन थे वह 32.2% की बात चल रही थी कि हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, लेकिन व्हाट अ रिजल्ट? हम लास्ट में आपको आउटपुट बताएंगे। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज दैट टू इम्प्रूव द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की जितनी भी प्रकार की योजना परियोजना चलाए गए थे वे सारे चीजों को एक व्यवस्थित रूप दे देना, एक उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, इसमें मेन मकसद बनाई गई थी। ठीक है, एंड इन दिस सेक्टर वी कैन से एग्रीकल्चर वाज द कोर इम्प्लीमेंटेड, ए कोर एलिमेंट, और इसमें सरकार ने एग्रीकल्चर को ही कह सकते हैं प्रायोरिटी दिया, महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्षेत्र मानती है। ठीक है, तो द रिजल्ट वाज दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटपुट, द रिजल्ट वाज दैट इंक्रीज इन जीडीपी। सबसे पहला जो हमारा जीडीपी था, जीडीपी में हमारा क्या इंक्रीज होता है, सो ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ ऑफ 7.6% कंपेयरिंग टू 5.5% कंपेयर टू 5.5% इन द 9th प्लान, यानी 9th 5-year प्लान में भी हम 5.5% अपने जीडीपी को ग्रोथ करने की बात कर रहे थे। इसमें भी हमने 5.5% किया था, लेकिन ये बढ़कर कितना होगा? 7.6% हो गया। इज इट ओके? एंड द लोअर देन टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ 8%, जो हमारा टारगेट था 8%, उससे कम हुआ ना, क्योंकि 7.6% है तो कम हो गया। ठीक है, ड्यू टू द लो ग्रोथ, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ लो हो गया, ऑफ 3% इन द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द 10th प्लान। ठीक है, तो जो 10th 5-year प्लान था उसमें स्टार्टिंग के जो साल थे उसमें ग्रोथ रेट स्लो हो जाने के कारण, ठीक है, ये प्राप्त नहीं कर पाया। आगे यदि हम इसका रिजल्ट की बात करते हैं, इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आती है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी उसमें एक ग्रोस डोमेस्टिक में एक बहुत उछाल कर सकते उछाल आ जाती है। एंड रिडक्शन इन IOCR और ICOR में इसकी एक डिक्लाइन कर सकते हैं, रिडक्शन हो जाती है, कमी हो जाती है टू 4.2%, लगभग 4.2% का इसमें कमी हो जाती है। ठीक है, दाऊ हायर देन टारगेटेड, जो भी टारगेट किए थे उससे भी ज़्यादा, बट लेस देन 9th 5-year प्लान, लेकिन 5 ईयर जो 9th प्लान था उससे कम वो हो जाता है आपको आई थिंक 4.53%। ठीक है, 4.53% ये आपको कम हो जाती है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू $287 बिलियन, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 10th 5-year प्लान में क्या हुआ, ये हमारे पास विदेशी जो मुद्रा थे इसमें एक बहुत बड़ा फ्लो हो जाता है, इनफ्लो हो जाता है, और जो इनफ्लो होता है वो $US का 287 बिलियन हो जाता है। इज इट ओके? दैट्स व्हाई वी कैन से हाउएवर द 10th 5-year प्लान वी कैन से फेयर्ड वर्स्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लेकिन जो हमारे सामाजिक राजनीतिक
या सामाजिक जो हमारा आर्थिक जो स्थिति होती है, इस पर इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव तो रिस्पॉन्स नहीं आया, पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं दे सकते, बट द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वॉज मेयर्ड 2.1। लेकिन इसका जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था वो भी कम होकर 2.1% पर थोड़ा आ गई थी, ठीक है। तो एक निगेटिव रिस्पॉन्स आती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 11th 5-year प्लान, तो 11th 5-year प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री सिंस 2007 to 2012। तो भारत में 11th 5-year प्लान जो था वो 2007 से 2012 तक चलता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव वाज दैट एवरेज जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.1% पर ईयर, यानी प्रत्येक साल हमारा जो जीडीपी का 8.1% प्राप्त करने की, इसमें कह सकते हैं टारगेट करने की बात चल रही थी, ठीक है। एंड इफ हम टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, क्यों ये हमारा कोर सेक्टर में का हम पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ ऑफ 4% पर ईयर, तो एग्रीकल्चर की भी बात हो रही थी, भैया 4% हमको सालाना प्राप्त होनी चाहिए, बट जनरेशन ऑफ 58 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ 11वां पंचवर्षीय योजना में 58 मिलियन आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर उत्सर्जित करने की बात हो रही थी, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो फॉर द एज ग्रुप ऑफ आई थिंक 0.6 ईयर्स, ओके, 0 to 6 ईयर टू बी रेज टू 935, जो 935 था बाय 2011-12 एंड 950 बाय 2016 to 17। तो जो 935 था उसको 960 तक 2016-17 तक करने की बात इसमें चल रही थी। इज इट ओके? अब रिजल्ट क्या निकला? द रिजल्ट वाज दैट, आउटपुट वाज दैट द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 11th प्लान पीरियड वाज अबाउट 7.9%। तो इसमें जो ग्रोथ रेट था वह 7.9% रहा, विच इज द हायर देन द 7.8% ग्रोथ रेट अचीव्ड। तो जो भी अचीव किया हुआ 7.8% किया गया, जो एक हायर रेट आप कह सकते हैं उपलब्ध हो पाई एज अगेंस्ट टारगेट ऑफ द 4% ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और लेकिन यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो सभी को रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4% कह सकते हैं इन्होंने प्राप्त किया। ओके, द प्लान कुड रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ द ओनली 3% ड्यूरिंग 2007 to 2012 एंड द सर्विसेज सेक्टर, इफ हम टॉकिंग सर्विसेज सेक्टर कंटिन्यू टू रजिस्टर अ ग्रोथ। सर्विस सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा उछाल आया था, रेट ऑफ द मोर देन 10%, 10% से भी ज्यादा इसमें उछाल आई थी सर्विस सेक्टर में। हाउएवर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट सोड 7.9%, लेकिन यदि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 7.9% आपको शो करता है। इज इट ओके? अब देखिएगा, वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 12th 5-year प्लान, द 12th 5-year प्लान वॉज लॉन्च सिंस 2012 to 2017, 2012 से 2017 तक हमारा ये प्लान था, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को सरकार ने एस्टिमेट की थी, और कह सकते हैं कि यह एक इंद्रधनुष रेवोल्यूशन का एक रूप ले लिया था, जिसमें सरकार ने हर क्षेत्रों को डेवलप करने की चर्चा कर रही थी। इफ हम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यदि इकोनॉमिक ग्रोथ के हम टारगेट की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई थी कि जो हमारा रियल जीडीपी होता है, इट मीन टू से रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 8.0% अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2013, यानी 2013 के अप्रैल तक सरकार की बात हो रही थी कि जो हमारा रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट है वह 8% हो जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ 4.0%, एग्रीकल्चर में सरकार की थी कि 4% हम हासिल कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो था 10% की बात हो रही थी, एंड एवरी स्टेट मस्ट हैव हायर एवरेज ग्रोथ रेट इन द 12th 5-year प्लान दैट अचीव इन द 11th प्लान। और सरकार की योजना थी कि जिस तरह से 11वां 5-year प्लान में सभी राज्यों ने जिस तरह से अचीव किया है, उसी तरह 12th 5-year प्लान में हर राज्य अपना अपना कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस, जो हम कह सकते हैं रिलायंट की भावना को समझे, वो अपनी हासिल अचीव कर सके। इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, यदि हम गरीबी और रोजगार की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड एंड आल्सो मेड द प्लान बाय अवर गवर्नमेंट दैट हेड काउंट रेशियो ऑफ द कंजप्शन पॉवर्टी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, कि गरीबी को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10% तक कम कर दी जाएगी, पॉइंट्स ओवर द प्रेसिडिंग एस्टिमेट्स बाय द एंड ऑफ द 12th 5-year प्लान। कि जब हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना जब 2017 में समाप्त होगा तो उस समय तक ऐसा पता होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा एक कह सकते हैं मसौदा बनना चाहिए
कि हमारे यहाँ गरीबी जो है 10% तक घट गया है। इज इट ओके? एंड द जनरेट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी इन द नॉन फार्म सेक्टर्स। यानी इसमें सरकार का बात है कि नॉन फार्म जो हमारे सेक्टर्स हैं वे सारे सेक्टर में 50 मिलियन हम न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी को डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे एंड प्रोवाइड स्किल सर्टिफिकेशंस टू द इक्विवेलेंट नंबर्स ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान। और साथ ही साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार की योजना थी कि वह एक कौशल सेटिस्फैक्शन जो होती है, स्किल्ड जो होती है, वो लोगों में इस तरह की क्वालिटी को डेवलप कर दे। इज इट ओके? इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एजुकेशन बिकॉज इट इज़ आवर बैकबोन, ठीक है, और किसी भी इकोनॉमी के लिए बैकबोन होता है। तो यदि हम इकोनॉमी में एजुकेशन की बात करते हैं, खासतौर पर 12th 5-year प्लान में यदि चर्चा करते हैं, ठीक है, तो इन दिस एपिसोड मेनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टू इंक्रीज टू 7 years बाय द एंड ऑफ द 12th 5-year प्लान। तो इसमें सबसे पहला चर्चा की गई कि मीन कम से कम जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो होगी वह 7 साल का जो होगा उसको स्कूल में नॉमिनेशन हो जाना चाहिए। एनहांस एक्सेस टू हायर एजुकेशन, और यदि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो बाय क्रिएटिंग 2 मिलियन एडिशनल सीट्स, तो इसके लिए सरकार 2 मिलियन एडिशनल अतिरिक्त सीट्स का भी निर्माण करेगी फॉर ईच एज कोहॉर्ट एंड इफ योर एग्रेंट टू द स्किल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। That's why we can say our economy can fulfill the requirements. Is it okay? And if you are going to discuss about that interpretations, the elimination gender and social gap, तो जो कर सकते हैं क्या होता है, जो लिंग का इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, भिन्नता जो कर सकते हैं, या सोशल एक जो सामाजिक हमारी एक गैपिंग जो होता है, ठीक है, बोथ इन द स्कूल इनरोलमेंट, like if I'm talking about the between girls and boys, okay, and between ST, SCs, OBCs, Muslims, Hindus, okay, the rest of the population by the end of the 12th 5-year plan सरकार ने इसको निवारण करने की चर्चा कर रही थी, ठीक है। यदि आप हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का भी आपको जानना होगी। अकॉर्डिंग टू IMR, the reduce IMR 25 and MMR to 1 per 1000 in worth. It mean to say infertility mortality rate IMR, if I'm talking MMR mortality, okay, तो कहा कि जन्म दर जो होगा प्रत्येक 1000 पर 1 हो जानी चाहिए एंड इम्प्रूव्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 years to 950 by the end of the 12th 5-year प्लान। यानी 0 से 6 साल के बीच में जो हमारा लिंगानुपात की जो असमानता है, ठीक है, उसको 950 कर देने की बात हो रही थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी टू 2.1 बाय द एंड ऑफ द 12th 5-year, और इसमें जो फर्टिलिटी जो रेट था वो 2.1% उन्होंने कहा कि हम कम से कम 12वीं पंचवर्षीय योजना में रिड्यूस कर देंगे यानी कम कर देंगे। इज इट ओके? Reduce the under the nutritions among children as 0 to 3 year as half of the NFHS 3 levels by the end of the 12th 5-year plan। तो इसके तहत तो जो एक नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो कार्य दिए जा रहे हैं उसके तहत सरकार की योजना थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बच्चों का जन्म हो तथा वो हमारे इकोनॉमी में उनकी एक कंट्रीब्यूशन भी हो सके। इज इट ओके? इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 1-2 हम कुछ क्वेश्चन अब आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन के आधार से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक हमारा इंडिया विजन 2020 भी आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है इंडिया विजन 2020। ये इंडिया विजन 2020 क्या है तो ध्यान दीजिएगा। इंडिया विजन 2020 प्लानिंग कमीशन हैज रिलीज इंडिया विजन 2020 ऑन 23 जनवरी 2003 के 23 जनवरी 2003 को प्लानिंग कमीशन जो उस समय था उन्होंने इंडिया विजन 2020 को सबसे पहले रिलीज की थी, ठीक है। विच प्रेजेंट्स प्री असेसमेंट, जो एक प्री असेसमेंट को प्रोड्यूस करती है ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी प्रोग्रेस हुई है वही सारी चीज़ों को बताता है।
फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, अगले 2 दशक के लिए। इज इट ओके? एंड दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर श्याम प्रसाद गुप्ता। ये जो विजन 2020, इंडिया विजन 2020 था, ये मिस्टर श्याम प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा तैयार किए गए थे। और श्याम प्रसाद गुप्ता कौन थे? ही वॉज अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, यह एक प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे, सदस्य थे। उन्होंने इसमें कुछ मैटर को फोकस किया था, ठीक है। वह मैटर क्या था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उनकी जो पॉइंट थी, वह पॉइंट थी द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट बाय 2020 बी 9%, यानी 2020 तक जो हमारा एक्सपेक्टेड जो एनुअल ग्रोथ होगा 9% होना चाहिए। लेकिन आगे है भैया कोरोना, 2020 तक होना चाहिए, लेकिन कोरोना साथ कहाँ हो रहा है। सेकंड, एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, इलिटरेसी को समाप्त कर देंगे, गरीबी को समाप्त कर देंगे बाय 2020 तक। श्याम प्रसाद गुप्ता जी का एक डायलॉग था और उनके द्वारा विजन का था। थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड एज पर इंडिया विजन 2020 पर कैपिटल इनकम टू गेट डबल बाय 2020 तक सभी का इनकम डबल होने की बात हो रही थी। 70% रजिस्ट्रेशन ऑफ द चिल्ड्रेन इज ग्रुप 6 to 14% इन स्कूल, यानी 6 से 14 साल के जो बच्चे जिनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन, वे सारे के स्कूल में नाम नॉमिनेट होंगे। इज इट ओके? एंड 1.35% बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश के 1.35 यानी 135 जो हमारा करोड़ जो जनसंख्या होगी, हैव बीन द बेटर और लिविंग स्टैंडर्ड्स बाय 2020, यानी 2020 तक उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन जो होगी वो काबिले तारीफ हो जाएंगे, ठीक है। Environment situation, if I am talking, the environment situations to remain as unbalanced as present. तो जो environment हमारा सिचुएशन है जो अभी असंतुलन बना दिया है, इस पे भी कार्य किए जाएंगे, इसको सही करना होगा। विच 2% एनुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट, प्रत्येक साल 2% एनुअली आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ किए जाएंगे, जनरेट किए जाएंगे। 20 करोड़ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटेड बाय 2020, यानी 2020 तक 20 करोड़ नई रोजगार का सृजन किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट शेयर्स इन एग्रीकल्चर टू कम डाउन, यानी एग्रीकल्चर में जो ज्यादा से ज्यादा हमारा देश की जनसंख्या इन्वॉल्व है उसको कम किया जाएगा 2020 तक, और 56% से उसको 40% कर दी जाएगी। 56% है उसको 40% कर दिया, यानी 16% कम करना, ठीक है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अनऑर्गेनाइज, ठीक है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू क्रिएट मोर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करेंगे, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज टू गेट इंक्रीज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 25% टू 40%, और शहर की जो जनसंख्या होगी वह 25% से 40% एकदम ड्रामेटिक चेंज हो जाएंगे, यानी उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। इफ हम टॉकिंग वाटर प्रॉब्लम, तो वाटर प्रॉब्लम इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज टू कंटिन्यू एज सच, तो भैया जो वाटर प्रॉब्लम मेट्रोपॉलिटन में है, सिटीज में है, इस पे जो कंटिन्यू जब भी हैं, इस पे सरकार किसी भी प्रकार के सोचेगी। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया जो भी पूछा हुआ है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन भी सकते हैं। इसके अलावे और हम क्वेश्चन देख लेंगे प्लानिंग कमीशन से, फिर हम एक लास्ट वीडियो आपको दे देंगे जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।